Hello everyone, welcome to Chandigarh Civil Services Academy's YouTube channel. So in this video, we are going to discuss about an editorial which came in today's The Hindu newspaper titled Push the Policy Needed Forward on Migrant Support. So इस आर्टिकल में मेनली इंटरनल माइग्रेशन के बारे में डिस्कस किया गया है. व्हाट इज इंटरनल माइग्रेशन? जब एक वर्कर अपने होम टाउन से किसी अर्बन एरिया में जाता है या किसी भी अपने काम से रिलेटेड किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है to earn his livelihood or for some other reason, it is called internal migration. As opposed to external migration, which involves migrating from one country to another. So internal migration happens within the country. So this article starts off by mentioning national lockdown. We all saw what the migrants went through. वो जब अपनी काम की जगहों से अपने होम टाउन पर जा रहे थे and the difficulties they faced and everything whatever was involved in that situation, that led the government to take up various initiatives like one nation one ration card और अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग, जो कि एक सब स्कीम थी किसकी, प्रधानमंत्री आवास योजना की, which is that whole scheme was handled by Ministry of Housing and Urban Affairs. So this was one initiative. Another was e-Shram portal, जहाँ पर जो भी unorganized workforce है उसको register किया जाता है. The aim is to formalize various unorganized sector. Informal sectors को जो formalize करना चाहिए वो होता है ई-श्रम पोर्टल से, by registering unorganized workers. So these were some of the initiatives that were taken by the government. However, the momentum slowly died down. हमें पहले एक्सपेक्टेड था कि ये कंटिन्यू रहेगा, but the writer says that initially there were good hopes, but eventually the momentum fizzled out. And still the migrant stress is still present. In what form? So certain surveys say that income of the migrant workers still continues to be lower. मतलब जो पहले कोविड से पहले जो इनकम हुआ करती थी माइग्रेंट वर्कर्स की, अब वो बहुत कम हो चुकी है, एंड इट स्टिल कंटिन्यूज टू बी लोअर इवन इफ द कोविड केसेस आर नॉट देयर. बट जो इनकम है वो पहले जैसी आ ही नहीं पा रही है. प्री पैंडेमिक टाइम्स वाली इनकम जो थी और अब इनकम जो है उसमें बहुत डिफरेंस है, एंड इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग टू बी लोअर. Secondly, why the stress is present, and first of all the writer says that जो 1991 के रिफॉर्म्स थे, एलपीजी रिफॉर्म्स, वो मेनली माइग्रेशन ड्रिवन थे. माइग्रेशन ड्रिवन कैसे थे? जो भी रूरल एरियाज के लोग थे वो अर्बन एरियाज में आते थे जहां पर भी एमएनसीज होती थी इन सर्च फॉर वर्क. और जब वो आने लगे बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, काफी ज्यादा एमएनसीज आने लगी, दे वर प्रोवाइडिंग वर्क टू द माइग्रेंट वर्कर्स. सो बेसिकली पॉवर्टी कम हो गई. सो जो पॉवर्टी एलिवेशन हुआ था उस टाइम के दौरान वो बहुत अब अनडन हो गया, यानी कि अब वो रिवर्स ही हो गया है. द पॉवर्टी एलिवेशन दैट हैपेंड एट दैट टाइम is not the same anymore, and काफी जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन से अब नीचे गिर गए हैं. So the writer also mentions various issues in the migration policy. We discussed कि पहले जो migrant stress है वो evident है through various surveys, right? And ये stress हो क्यों रहा है? This is because जो हमारी माइग्रेशन पॉलिसी है उसमें काफी सारे इश्यूज हैं. सो विल डिस्कस दोस इश्यूज वन बाय वन. फर्स्टली, जो माइग्रेशन है वो एक पॉलिटिसाइज्ड फिनोमिना है. हाउ इज इट पॉलिटिसाइज्ड? जैसे एक स्टेट है उसको वोट्स चाहिए होते हैं ड्यूरिंग व्हाटएवर द पॉलिटिकल पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी उधर प्रेजेंट है उसको वोट्स चाहिए टू विन द इलेक्शंस. How will those votes come? When the people who are residing in that state, they are impressed by that political party and the work they are doing, right? If the political parties catering to the migrants and not catering to the native population यानी कि जो उस state में already रह रही है, अगर वो उनको cater नहीं करेंगे, so they won't get those votes, right? So
the political parties, they mainly focus on the people who are present in the state, right? Not to the they don't cater to the migrants. This whole phenomena is called nativism. Nativism means that जो गवर्नमेंट है उस स्टेट की वो कोटास प्रोवाइड करती है, डोमिसाइल कोटास. जैसे कि अभी हमने रिसेंटली देखा, हरियाणा डिसाइडेड दैट 75% ऑफ द जॉब्स will be reserved for the people who are domiciled in Haryana, right? So this is an example of policy of nativism. So these kind of policy, they are anti-migrants. Migrants are not benefiting from these policies. And ये जो quotas होते हैं, ये सब चीजें migrants को काफी negatively affect करती हैं. So जो ये पॉलिटिसाइजेशन का फिनोमिना है पूरे माइग्रेशन का, सो दिस इज वन बिग इशू इन केस ऑफ माइग्रेशन पॉलिसीज. सो द राइटर सेज जो डेस्टिनेशन स्टेट है, यानी कि जो माइग्रेंट्स को रिसीव कर रहा है, उसके पास वो दैट स्टेट इज दैट द डेस्टिनेशन स्टेट इज फेसिंग अ डायलेमा. डायलेमा यानी कि वो दो सिचुएशंस में कंफ्यूज्ड है. दो सिचुएशंस कौन सी हैं? एक उसकी इकोनॉमिक नीड है और दूसरी उसकी पॉलिटिकल नीड है. इकोनॉमिक नीड क्या है कि उसको माइग्रेंट्स की जरूरत है. the work that is going to happen in that state, it needs people, it needs migrants to work for that project. But on the other hand, the state is also seeing ki the political needs of that the whole state, कि अगर वो natives को नहीं cater करेंगे, so they won't get those votes. So this is the dilemma that the destination state is facing. Now the second issue that the writer mentions is that migrants, जो migrants हैं वो एक fuzzy category बन गया है between two categories, organized worker and urban poor. ये दो कैटेगरीज के बीच में कहीं माइग्रेंट्स फॉल करते हैं. सो जो गवर्नमेंट है वो इन दो कैटेगरीज को लेकर ही पॉलिसीज बनाती है. जैसे जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर की पॉलिसी बना दी, गवर्नमेंट सोचती है कि अगर हम ये पॉलिसी बना रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ही माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम्स भी एड्रेस हो जाएंगी. बट ऐसा नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल ई श्रम पोर्टल है. ई श्रम पोर्टल रजिस्टर करता है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को, बट वो एकदम एक्यूरेटली उनको वो जो माइग्रेंट्स हैं उनको फिगर आउट नहीं कर पाता. इट जस्ट रजिस्टर्स अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर एंड माइग्रेंट्स की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और उनकी जो एरियाज है जो एड्रेस होनी चाहिए वो नहीं हो पाते, राइट? एंड द सेकंड ग्रुप विच इज अर्बन पुअर, कई पॉलिसीज बनती हैं मेजरली फॉर अर्बन पुअर. गवर्नमेंट सोचती है अगर हमने ये पॉलिसी बना दी है तो ऑटोमेटिकली माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम्स एड्रेस हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं होता. द राइटर गिव्स एन एग्जांपल इन दिस आर्टिकल. अब जैसे कि स्लम, कोई अर्बन एरिया है, अर्बन पुअर के लिए कोई पॉलिसी डिजाइन की एंड दैट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग अ स्लम एरिया. फाइन, द गवर्नमेंट विल से इफ द स्लम एरिया इज डेवलप्ड, automatically migrants will be benefited because it is assumed that they are living in the slum areas, but this is not the case. The writer says that they have their residential area on work sites. उनके रहने की जगहें अलग होती हैं और उनकी प्रॉब्लम्स भी अलग होती हैं. So those problems need to be addressed separately. ओके, सो इस सेकंड पॉइंट का एक तरह से क्रक्स ये है कि बजाय कि दूसरी पॉलिसीज में इंक्लूड करने के कि अगर ये हमने पॉलिसी डिजाइन कर दी तो माइग्रेंट्स की ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स एड्रेस हो जाएंगी, इसके बजाय वी हैव टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ द माइग्रेंट्स हेड ऑन इंस्टेड ऑफ thinking that they are falling in these two big categories. Now the third issue in the migration policy is failure of official data sets to capture actual scale and frequency of internal migration. Now data is very important. हमें पता होना चाहिए जो migrant है वो कहाँ जा रहा है and किन किन states में वो कर रहा है, back and forth travel कर रहा है, because
हमें काफी प्रॉब्लम्स आ जाती, जैसे कि रिसेंटली देयर वाज ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स the government specifically made a policy for migrant women where maternity benefits उनको प्रोवाइड किए गए ड्यूरिंग इन द मल्टीपल लोकेशंस, right, not necessarily in the state where they are residing and from where उनके आधार कार्ड के पीछे जो एड्रेस है सिर्फ उसी स्टेट के में ही उनको मेटर्निटी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि सभी स्टेट्स में जहां पर भी वो ट्रैवल कर रहे हैं वो उनको बेनिफिट्स अवेल हो जाएंगे. सो दिस इज वन वेरी गुड एग्जांपल एंड दिस वाज मेड पॉसिबल बिकॉज डेटा सेट्स हमारे अपडेटेड होंगे जब, राइट. सो इफ द डेटा सेट्स आर नॉट अपडेटेड एंड इफ उनके रियल टाइम जो वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो कैप्चर ही नहीं हो रही है, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड देम वेलफेयर बेनिफिट्स. ओके, सो द राइटर्स इवेंचुअली सजेस्ट कि हम कर क्या सकते हैं. सो पहली चीज जो हमारे डेटा प्रोजेक्ट्स हैं उनको अच्छे से हमें डिजाइन करना पड़ेगा सो दैट दे कैन जनरेट डायनामिक रियल टाइम डेटा. फाइन, वन एग्जांपल ऑफ दिस इज महाराष्ट्र. महाराष्ट्र का जो एक माइग्रेंट्स को ट्रैक करने का सिस्टम है वो रियल टाइम बेसिस पर है. सो इट स्पेसिफिकली इट केटर्स टू विमेन एंड चिल्ड्रन एंड ये जो प्रोग्राम था वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि इसको फाइव डिस्ट्रिक्ट्स में और इम्प्लीमेंट कर दिया गया. सो दीज एग्जाम्पल्स नीड टू बी टेकन सीरियसली एंड they need to be implemented in more and more districts. Now, the second solution that the writer provides here is strategic convergence across different departments and initiatives. Mostly जो हमारे migrants से related programs होते हैं that fall under the Department of Labor, but जो राइटर है वो कहते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी चाहिए. जैसे कि जो ये महाराष्ट्र वाला एग्जांपल हमने पहले डिस्कस किया जो कि फोकस करता है विमेन एंड चिल्ड्रन पर, तो दैट फॉल्स अंडर विमेन एंड चाइल्ड केयर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. ओके, सो हमें हमेशा लेबर डिपार्टमेंट के अंडर ही नहीं डालना चाहिए. सो देयर शुड बी कन्वर्जेंस, देयर शुड बी फ्री कम्युनिकेशन अक्रॉस डिपार्टमेंट्स एंड सो दिस इज द सेकेंड वे फॉरवर्ड. Also, thirdly, we need what the center needs to do. Center has to take really proactive steps because जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया जो स्टेट्स हैं वो कहीं ना कहीं माइग्रेंट के इश्यूज को पॉलिटिसाइज कर देती हैं. द माइग्रेशन प्रोसेस इज अ पॉलिटिसाइज्ड फिनोमेना एज वी डिस्कस्ड अर्लियर. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेंटर to make a broad policy framework for the migrants. जैसे कि अभी नीति आयोग ने ड्राफ्ट पॉलिसी ऑन माइग्रेंट वर्कर्स रिलीज की. सो दिस वाज अ पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड. ओके, सो these things need to happen and why? Because we can't ignore this section. The migrants form 1/3 of India's workforce and this section, this group is really important and this cannot be ignored. So the writer also says that ये जो migrant workers they fuel major sectors like manufacturing, construction, hospitality, logistics, commercial agriculture. So ये जो important sectors है इसमें migrants का बहुत बड़ा रोल है. So this sector needs to be taken seriously separately and these points will definitely going to help in making the migration policy better. So this was what was discussed in the article. I hope every one of you have understood. So thank you.